ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਔਨਵਰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 5290 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ 2973 ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 5413 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ 13776 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਚ 1 2025 ਔਨਵਰਡਸ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 34000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਰੈਸਟ 45000 ਹੈਗੀਆਂ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰੀ 2150 kg ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 45000 ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ 65 ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਆਪ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਰਨ ਹੈਗਾ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਸ ਪ੍ਰਹਾਰ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਟਡ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੇ ਫੇਕ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਲ ਅਰੈਸਟ ਓਨਲੀ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਫॉर ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸੇਫ ਬਣਾਉਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ हैं कि सीनियर ऑफिसर्स SSPs DIGs कमिश्नर्स ऑफ पुलिस वो ਜਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट सीन्स ऑफ क्राइम ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਕੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਵਿਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਜਿਵੇਂ ਨਾਕੇ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਇਕਵਿਪਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੂਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 2 ਵੀਲਰਸ ਤੇ ਇੱਕ SOP ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ NGOs ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੋ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀਲਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਟ of criminals after committing the crime criminals की chase so ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ elaborate ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ SOP ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲਸ ਤੇ ਡਰਿਲਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आई विल वेलकम एनी क्वेश्चंस अच्छा हिंदी में करूँ एक बार आज एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करके मैंने जो पंजाब सरकार के 2 मेन ऑपरेशंस युद्ध नशियां विरुद्ध और गैंगस्टर ते वार को रिव्यू किया जिसमें सीनियर ऑफिसर्स हेडक्वार्टर्स जिन्हें डिस्ट्रिक्ट्स अलॉकेट किए गए हैं स्पेशल DGPs एडिशनल DGPs IG DIG रैंक के ऑफिसर्स और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस SSPs DIG रेंजर्स और कमिश्नर्स ऑफ पुलिस के साथ डिस्कस किया गया रिव्यू किया गया कि उनकी परफॉर्मेंस अब तक कैसी रही है और कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कहाँ पे हमें और थ्रस्ट एरियाज हमारे कौन से हैं तो अभी तक ये जो गैंगस्टर थे वार जो 20 जनवरी 2026 से शुरू किया गया था इसमें 5290 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं 2973 प्रिवेंटिव डिटेंशंस हुए हैं और 5413 लोगों को वेरीफाई करके रिलीज किया गया है टोटल 13676 लोगों को ये इसमें टच किया गया है 1 मार्च 2025 से जो युद्ध नशियां विरुद्ध जो पंजाब सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें एनफोर्समेंट में FIRs लगभग
34,000 के करीब हो गई हैं और 45,000 अरेस्ट हो गई है, जिसमें 3,000 बड़े सप्लायर्स अरेस्ट हुए हैं, 65 हवाला ऑपरेटर अरेस्ट हुए हैं, 2,150 केजी हेरोइन रिकवर हुई है और भी भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। तो कल सुबह से हम एक 72 घंटे का दोबारा से ऑपरेशन प्रहार 2 करेंगे, जो फोकस्ड होगा वांटेड क्रिमिनल्स पे, जिन्होंने क्राइम किया है, जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनकी गिरफ्तारियों के लिए एक सक्रिय तरीके से उनकी लिस्टें बनाई जा रही हैं, बन चुकी हैं और इन पे दोबारा से एक प्रहार होगा कंसंट्रेटेड सभी रिसोर्सेज करते हुए। जैसे लास्ट टाइम हमने 12,000 पुलिस ऑफिसर्स को मैदान में उतारा था, तो इस बार भी हमारे 12,000 से ज्यादा ऑफिसर्स फील्ड में उतरेंगे, 2,000 से ज्यादा टीमें बनेंगी और हम ज्यादा से ज्यादा लॉफुल गिरफ्तारियां करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस तरह के ये बिल्कुल लॉफुल कैंपेन है, जो क्राइम में वांटेड है उसी को गिरफ्तार किया जाएगा और ये आम लोगों को सुरक्षित महसूस करने के लिए, आम लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस रिव्यू करी है और फील्ड ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो स्वयं जो सीन्स ऑफ क्राइम होते हैं उस पे एसएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस इंपॉर्टेंट सीन्स ऑफ क्राइम खुद विजिट करेंगे और उसके बाद वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एरिया में निकलेंगे, बाजारों में, पब्लिक प्लेसेस में, इंपॉर्टेंट नाका पॉइंट्स पे पेट्रोलिंग करी जाएगी, पुलिस की विजिबल प्रेजेंस बढ़ाई जाएगी। इसके लिए मैन पावर की ऑगमेंटेशन करके जो नॉन कोर ड्यूटीज हैं वहां से मैन पावर विड्रॉ करके कोर ड्यूटीज पेट्रोलिंग और पुलिस स्टेशन में लगाया जाएगा। व्हीकल चेकिंग पे हम ज्यादा जोर देंगे। हमने अपना वायरलेस सिस्टम की फंक्शनिंग भी हमने रिव्यू करी है और ये इंश्योर किया जाएगा कि हर एनजीओ, हर पुलिस ऑफिसर जो थाने में तैनात होता है उसके पास वॉकी टॉकी सेट हो, वो उसका प्रॉपर कॉल साइन हो, वो अपने थाने के साथ कम्युनिकेशन में हो, थाने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से जुड़े हो। कोई इंसिडेंट होता है तो उसके बाद जो उस पर रिएक्शन प्लान है, किस लेवल का हमने कौन सा एरिया कॉर्डन ऑफ करना है, कहां कहां पे नाके लगाने हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स में डिजिटल मैप्स पे वो चीज प्लॉट करी जाएगी और अकॉर्डिंगली पीसीआर की गाड़ियां, पुलिस स्टेशन की गाड़ियां, अगर जरूरत महसूस होगी तो पूरा जिला सील करना है, एडजॉइनिंग जिले को बताना है। तो इसका एक एसओपी और प्रोटोकॉल हमने बनाया है। हमारा उद्देश्य है कि पंजाब को हम पूरी तरह क्राइम से फ्री रखेंगे। पंजाब में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कोई गैंगस्टर क्राइम करता है तो उसे हम एज पर लॉ हम उसे चेस करेंगे, भारत के किसी भी कोने से उसको पकड़ के लाएंगे या भारत से बाहर भी होगा तो उसे पकड़ के लाएंगे। सर 5,000 आपने अरेस्ट किया, इसमें किस तरीके से क्रिमिनल, किस तरीके की क्रिमिनल इन्वॉल्व है, कोई हीनियस क्राइम का भी क्रिमिनल इन्वॉल्व है, उसका थोड़ा इसमें ये डिटेल्स हम शेयर कर देंगे। इसमें सभी तरह के क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं और एक मैं अभी सॉरी मेरी गल मैं दसनी भुल गया सीगा कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। उसके बाद गोल्डी बराड़ की एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी तो सीधे रूप पुलिस कर्मियों को, सरकार को धमकी दे रहा है कि हमें पता है आपके बच्चे विदेश में कहाँ रहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं किसी भी क्रिमिनल को मैं ग्लोरीफाई नहीं होने दूंगा। जो क्रिमिनल है उसे एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जाएगा, जो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी है हम उसके खिलाफ हम सख्ती से पेश आएंगे। लेकिन अभी तक जो मेन एक्यूज है वो ट्रेस नहीं हो पाए, किस तरह आप पुलिस पे कार्रवाई? देखिए जलंधर का जो केस है उसमें बहुत 24 घंटे के अंदर पहली गिरफ्तारी हुई, जो मेन अक्यूज आइडेंटिफाई हो गया है, पुलिस की टीमें उसके पीछे लगी हैं। ये भी स्पष्ट करना मतलब एक मैं थोड़ी सी मैं मीडिया के अपने साथियों से भी सहयोग मांगना चाहूंगा कि हमारे यहाँ मतलब जैसे मैंने पहले कहा था कि हम क्राइम को बहुत सीरियसली लेते हैं और क्राइम को हम बिल्कुल तत्परता से हम उसको ट्रेस करते हैं। तो कई बार अगर मतलब मैं सिर्फ पिछली बार मैंने क्राइम रेट की बात करी थी तो मैंने बताया था जब ईयर एंडर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 227 क्राइम्स पंजाब में जो क्राइम रेट होती है क्राइम्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन है, जो नेशनल एवरेज है 450, हरियाणा में 739 है और दिल्ली में 1602 क्राइम्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन होते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मैंने फिर वायलेंट क्राइम्स इस बार निकलवाए थे क्योंकि वायलेंट क्राइम्स नेशनल एवरेज है 31.2 वायलेंट क्राइम्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन और पंजाब में 20 वायलेंट क्राइम्स पर लैक ऑफ पॉपुलेशन होते हैं, हरियाणा में 48.6 है और दिल्ली में 51.5% है। मैं सिर्फ ये फिगर्स इसलिए कह रहा हूं कि
हमारे यहाँ एक परसेप्शन बन जाता है। तो कई बार पर्सनल मोटिव से, या जैसे मैं होशियारपुर की जो ओल्ड लेडी का मर्डर हुआ था, अब एक वो पर्सनल मोटिव से एक मर्डर हुआ है। तो जो सारी जो क्राइम की थ्योरीज हैं, या आप विदेशों में या जो वेल एस्टैब्लिश्ड है कि क्राइम के सोशियोलॉजिकल रीजंस होते हैं। अगर परिवार में किसी का झगड़ा है, अगर किसी का जो एक प्रिवेंटिव जो काम होता है वो होता है कि जैसे स्नैचिंग है या बर्गलरी है या कोई एक जो इनको डिफाइन किया जाता है एज पब्लिक क्राइम। तो पर्सनल मोटिव वाले क्राइम्स हैं, उनको हर किसी भी देश में, किसी भी सोसाइटी में हमेशा रोका नहीं जा सकता। प्रिवेंटिव मेजर से वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं। फिर भी हमारी ओवरऑल फिगर काफी लो है। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫੋਰਨ ਲਿੰਕੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਲਿੰਕੇਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 92 ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 84 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 216 ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 160 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 56 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਐਟ ਲਾਰਜ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਂਡੇਵਰ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਫੇਸ ਲਾਅ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਮੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਚੱਲਿਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ਵਾਸ ਹਾਈਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਪਸਲੀ ਡਿਰੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬੇਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਬਾਈ ਥੀਸ ਰਿਊਮਰਸ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਲਾਅ, ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਲੋੜਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਯੂਥ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੂਗਾ। ਜੋ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਫੇਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਰੋਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਦਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਸਕੈਨਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਆਈਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ हाँ जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੋਚਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ 38 ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। सर एक सवाल है कि ये लास्ट टाइम हाँ जो जी, इंसिडेंट सॉरी ਤੁਸੀਂ आप कुछ कह जी। सवाल ये कि आपने अभी लंदन से इंसिडेंट और उसके बाद आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 400% हथियार जो है बॉर्डर पार से इंक्रीज हुए हैं। जो गैंगस्टर्स हैं वो भी उन लोगों को हथियार बना रहे हैं जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है। आप जैसे आप कल ऑपरेशन आज कोई शुरू कर रहे हैं, क्या उन लोगों के ऊपर इस तरह की जो नजर है आपके ऊपर जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है लेकिन वो हमेशा शार्प शूटर टाइप के काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नजर है हमारी, बिल्कुल। क्योंकि जैसे हम किसी को पकड़ते हैं, जैसे जो पुलिस का काम करने का तरीका, उसकी इंटरोगेशन में किसी का जिक्र आता है या किसी के रेफरेंस में किसी का आता है। मान लीजिए किसी का हम मोबाइल नंबर एनालाइज करते हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट्स आते हैं जो लोग क्राइम में नहीं भी इन्वॉल्व होते, तो उनको हम एज पर, क्योंकि हम फिर वॉच करते हैं उनका कंडक्ट, तो उसके बाद हाँ जी प्लीज आप। साहब आपका कार्यकाल एक्सीलेंट रहा है, लेकिन 1992 से लेकर अब तक पंजाब में अगर क्राइम की हिस्ट्री देखें, पंजाब कितना तब्दील हुआ है, गैंगस्टर को खत्म करना कितना मुश्किल हो गया। और दूसरा क्वेश्चन भी ऐड ऑन कर देता हूं मैं,
उस दिन सुखबीर बादल वहां पर पहुंचे थे, क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? कोई भी व्यक्ति वहां पर पहुंच गया आपके बिना? सर ये वो भी हेडक्वार्टर में इस तरीके से पहुंचे। देखिए जो पंजाब में अगर आप पॉपुलेशन की बात करें, जो 2011 का सेंसस था तो उसमें 2,77,00,000 जो पॉपुलेशन थी। अभी एस्टिमेशन जो आ रही है हमारी वो 3,12,00,000 के करीब, तो 12-13% जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है। रफ सा मतलब मीडियम इंक्रीज है स्टेट की। और क्राइम जो हमारा है वो तकरीबन स्टेट मतलब क्राइम कभी अप हो जाता है, डाउन हो जाता है। जैसे पिछले साल जो मैंने ईयर एंडर में ही बताया था कि मर्डर्स में 8% की कमी आई थी, किडनैपिंग में कभी किसी ईयर में बढ़ भी जाता है। पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तकरीबन हमारे मर्डर्स जो हैं वो 700, पौने 700 इसके अराउंड स्टेबल रहे। कभी बढ़ जाते हैं। किडनैपिंग हमारी 1050 के करीब किडनैपिंग्स मर्डर, तो जो हीनियस क्राइम बढ़ा नहीं है। तो अगर आप एक मैक्रो व्यू लेंगे तो हमारी कोशिश है, ये जो चैलेंजेस आपने बताए ये इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। जो पाकिस्तान का रोल है, जो ISI ड्रोन्स जो इस तरफ आर्म्स, एमुनिशन, एक्सप्लोसिव्स लेके आ रहे हैं, एक ये नार्को टेरर की हमारे पे वॉर कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, तो इसको हम पूरी सक्षमता से इसका जवाब दे रहे हैं। और आप देखिए, आप गिरफ्तारियां देखिए, जैसे पिछले साल हमने 995 गैंगस्टर्स अरेस्ट किए थे, तो हमारी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जैसे मैंने बताया कि क्राइम के सोशल रीजंस होते हैं, तो उसकी वजह से लोग क्राइम की तरफ, तभी हमारी ये कोशिश है कि जो गुमराह हो गया है या जो सोशल मीडिया की ग्लोरिफिकेशन के इसके प्रति जाए। ये भी मैं आपको फिगर्स देना चाहूंगा कि हमने पिछली बार मैंने बताया था कि हमने 8,171 URLs सेक्शन 79 की डिलीट करवाई थी। 2,000 से ज्यादा URLs गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उनके पास पावर्स है, 69 IT एक्ट में डिलीट हुई है। 328 FIR हमने वेपन डिस्प्ले या सॉन्ग्स में कोई भड़काऊ ग्लोरीफाइंग बात पे रजिस्टर करी है। 7,000 जो लाइसेंस्ड वेपन्स की कैंसिलेशन का प्रोसेस हमने शुरू किया हुआ है, कॉम्पिटेंट लाइसेंस अथॉरिटी, उसमें तकरीबन आधे कैंसिल हो चुके हैं। देखो, being an officer, so there are certain things I would not comment upon. सर जो बंदे अरेस्ट किए हैं, जी छीना जी, जो बंदे अरेस्ट किए हैं, जो 5,000 के करीब बता रहे हैं, जो वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर में, इसमें ज्यादातर प्रोफाइल क्या है? हार्डकोर क्रिमिनल्स है या जो ये शेयर कर दूंगा मैं। देखिए इसमें मोस्टली हमारा फोकस रहा है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में रहे। तो जैसे ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के केसेस हैं, 307 के केसेस हैं, आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, ज्यादा उस पे हैं। कुछ जो दूसरे भी वांटेड, कैसे हमने जैसे 350 के करीब POs अरेस्ट किए, तो PO फिर किसी भी केस के होंगे, तो वांटेड क्रिमिनल्स में। बट बॉटम लाइन जो ये है कि वो किसी ना किसी केस में वांटेड होगा। अगर हमें अदरवाइज इंफॉर्मेशन मिल गई, कोई शक के घेरे में आ गया, उसे हमने राउंड अप किया, वेरीफाई किया, छोड़ दिया। तो ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल लॉफुली काम कर रहे हैं। गैंगस्टर ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ? नहीं, दिस इज अ सस्टेन्ड कैंपेन फॉर ऑर्गेनाइज्ड